So students, today we are going to learn about Microsoft Word 2016. Okay, it's our chapter number 5, present on page number 50. So chapter's name is Introduction to Microsoft Word 2016. So in this chapter, we are going to learn about what is Microsoft Word, what are the different parts of Microsoft Word window, how can I open and close a document, and how can I edit a document. These are the 4 things that we are going to learn in this chapter. So first of all, there is a think and discuss given here. We are going to discuss it right now. So it says that the city of Wonderland has an old ice cream factory. When it was started, the owners wrote the ingredients and the recipes in small notebooks. In a few years, they had more than 100 notebooks with details of ingredients for different flavors, cones, designs, and so on. It was getting out of hand. They decided to buy a computer to store these records. Which software do you think would best suit for their purpose? Yani, there is a city of Wonderland has an old ice cream factory. There is a old ice cream factory in city of Wonderland. When it started, at the initial stage of this factory, the owners wrote some ingredients and recipes in small notebooks. Okay, for their particular recipes. But in few years, they had more than 100 notebooks with details of different ingredients for different flavors. Okay, जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया है, उसी हिसाब से उनका जो वेरियस टाइप के चीजें भी उन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया, जिसके वजह से डिफरेंट रेसिपीज, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बनना भी शुरू हो गया। क्योंकि वो सब अपने नोटबुक्स में लिखते थे, इसीलिए नोटबुक्स भी बढ़ते गए। हाँ, 100 से ज्यादा हो गए। तो इस अभी क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उन सारे चीजों का डिटेल्स रखने के लिए, इसीलिए उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा है। ठीक है, अभी हमें ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम यूज करें उस कंप्यूटर में, ताकि हमें आसानी हो इन सारे इंग्रेडिएंट्स, इन सारे रेसिपीज, ये सारे डिटेल्स को मेंटेन करने में। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है कि any software that can create and save files such as Microsoft Word, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं एक फाइल को, जैसे कि Microsoft Word. Next, using a software program, they can save recipes and records as documents without fear of them getting stranded or lost. When we want to create a text document such as a recipe, a story, or a letter on a computer, we use a word processing program. Okay, तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जब हम यूज करते हैं रेसिपीज या फिर रिकॉर्ड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, उसमें क्या फायदा है, वो कभी खराब नहीं होता। उसमें कोई चीजें, जैसे हम अगर अपने किताब में या फिर नोटबुक में अगर कुछ लिख के रखते हैं, उसमें पानी गिर गया है, वो खराब हो गया, कुछ साल रह जाएगा तो भी वो खराब हो जाएगा। पर अगर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में हम उसे सेव करके रखते हैं तो वो कभी खराब नहीं रहता होता। ठीक है, नेक्स्ट पेज। A word processing software application is used to create, edit and print text documents. So word processing software एक ऐसा एप्लीकेशन है which is used to create, edit and print text documents. Okay, WordPad, WordPerfect and Microsoft Word are examples of word processing software. So
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उससे बाद में एडिट कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, और जब भी हम चाहें उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसे ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि वर्ड पैड, वर्ड परफेक्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, पर यहाँ पे हमेशा लिखा जाता है MS वर्ड। तो MS यानी माइक्रोसॉफ्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। In this chapter, we will learn the working of Microsoft Word 2016 in details. Microsoft Word is usually pre-installed in Windows laptop or PC. For other devices like iPad and MacBook, Microsoft Word book can be brought and installed. अगर हम विंडोज लैपटॉप या फिर विंडोज कंपनी का पीसी खरीदेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें प्री इंस्टॉल यानी पहले से ही इंस्टॉल होके आता है। पर अगर हम कुछ और कंपनी का लैपटॉप या फिर पीसी खरीदेंगे तो हम उसे खरीद के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में यू कैन सी इट क्लियरली दैट देयर इज अ ब्लू टैग, एंड यहाँ पे लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यूज्ड टू क्रिएट, एडिट and print text documents. So whenever I ask you what is Microsoft Word, you have to say that Microsoft Word is a software application from the Microsoft Office suite used to create, edit and print text documents. यानी जो लिखावट वाले चीजें होते हैं जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसे बोला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एक ऐसा बॉन्च ऑफ सॉफ्टवेयर उसमें रहता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहता है, उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है। उन सॉफ्टवेयर के बारे में हम बाद में जानेंगे, पर अभी हमें ये जानना जरूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एक ऐसा बॉन्च ऑफ एप्लीकेशंस के साथ आता है जिसमें बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर रहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस सॉफ्टवेयर में से एक है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वी यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने में वो हमें मदद करता है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन 2016. Okay, now we are going to learn about the basic things about Microsoft Word 2016. Why it is written 2016? Because we are going to learn about Microsoft Word of 2016 version. Okay, there are a lot of versions for Microsoft Word. For example, Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010. Okay, हर एक ईयर के वाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी अपडेट होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 यानी 2016 में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्रिएट हुआ था, जो सॉफ्टवेयर बना था, वो वाइडली यूज होता है अभी भी, इसीलिए हम उसी के बारे में ही जानेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बेसिक डिटेल्स बताने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ताकि तुम जिस भी कंप्यूटर में बैठो वहां में कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन हो तुम उसमें इजीली यूज कर सको, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। हम एक ही चीज को पढ़ के कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पीसी में अलग अलग वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी रह सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जनरल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे, ताकि कोई भी वर्जन हो हम उसके ऊपर काम कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। देयर आर two ways to start the Microsoft Word application on a computer. To open a Microsoft Word from the start menu, click the start button, then select Word. Look at here, ये start menu है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि Microsoft Word कहाँ पे है, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, फिर हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे देखो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बॉन्च में आता है, इतने सारे सॉफ्टवेयर। तो हमें ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक उपाय है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए। व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन? प्रेस विंडोज की प्लस आर ऑन द कीबोर्ड। ओके, देयर इज अ Windows key on keyboard, then we have to click R along with the
विंडोज की। देन यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, हमें उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करके हम उसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, टाइप विनवर्ड, यहाँ पे देखो मैं टाइप कर रहा हूँ WINWORD। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट जो लोगो है जो कीबोर्ड में, ठीक है, विंडोज की, उसको क्लिक करते हुए हमें आर बटन को क्लिक करना है। फिर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हमें विनवर्ड इंसर्ट करके एंटर करना है। तो देखो ये शॉर्टकट है ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, तो देयर आर टू वेज टू ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन योर पीसी। फर्स्ट one is the general way, which one we have to click on the start button, then we have to search Microsoft Word here. Okay, by in all programs and Microsoft Office, then we have to click on Microsoft Word. The Microsoft Word document will automatically open here. Otherwise there is another shortcut for where we have to click on the Windows key, then we have to click on R button along with the Windows key, then we have to type WinWord, WINWORD, then we have to click on the enter button, then it will automatically open. Okay, we have learned how to start an Windows 2016. Now next page, open page number 52. The Microsoft Word windows will appear as shown in figure 5.3. Select the blank document option and start creating a document. Okay. जब भी हम ओपन करेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, और हम इसमें काम कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर गिवन हियर। द मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन विंडो आर शोन इन फिगर। यहाँ पे देखो, तुम सब देख सकते हो कौन से पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये है फाइल टैब, यहाँ पे देख सकते हो तुम। बुक में देखो, यहाँ पे लिखा है फाइल टैब, उसके बाद आएगा क्विक एक्सेस टूल बार, नेक्स्ट वन इज इंसर्ट पॉइंटर और कर्सर, टेक्स्ट बार, यहाँ पे हेल्प है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, दिस वन इज कॉल्ड रिबन, द टोटल bunch of these things are known as ribbon, then vertical scroll bar, zoom, view bar, horizontal scroll bar, blank page to write on, and status bar. These are the parts present on Microsoft Word window. ठीक है, now what are the operations of these particular things? First of all, title bar. Okay, we are going to learn about the title bar. It is a horizontal bar located at the top of the window. It displays the name of the document. The right side of the title bar contains minimize, maximize, restore, and close button. So what is title bar? Look at here. This is a Microsoft Word page. This one is called टाइटल बार। यहाँ पे देखो, तुम सब देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वी कॉल इट एज अ टाइटल बार। ओके, टाइटल यानी इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा स्टैंडर्ड 3 कंप्यूटर, तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड 3 कंप्यूटर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 कंप्यूटर लिखा देगा, इसीलिए इसका नाम है टाइटल बार। और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ये है मिनिमाइज ऑप्शन, this one is the restore down button, this one is the close button. Okay, next one is quick access toolbar. Next one is quick access toolbar. Frequently used commands such as save, undo and redo are located here. तो क्विक एक्सेस टूल बार का जो यूज होता है वो क्या किस लिए होता है, उसमें हम सेव करने के लिए, undo करने के लिए, redo करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। Next one, ribbon. The ribbon is located just below the title bar. It consists of tabs and groups. यहाँ पे देखो, ये है ribbon, ये सारी चीजों को रिबन बोला जाता है पूरी तरह से। ठीक है, पूरा पोर्शन को रिबन बोला जाता है।
यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। फ्रंट ग्रुप, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, स्टाइल्स, ये सारी चीजें इसमें रहते हैं, इसे रिबन बोला जाता है। Next one, file tab. The file tab is located on the upper left corner of the window. When we click on this tab, a new screen appears. This is called the backstage view. The backstage view helps us create, save and open print files. Okay. यहाँ पे you can see it right here. ये file tab है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं किसी भी चीज को। यहाँ पे देखो अनडू, रिडू, तो ये तो क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तुम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फाइल सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें और क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एक नया ओपन करके, न्यू करके एक न्यू चीज ओपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बैकस्टेज व्यू में हम यहाँ पे न्यू ओपन कर सकते हैं, न्यू एक फाइल को। यहाँ पे प्रिंट कमांड भी दे सकते हैं, ठीक है। सेव कर सकते हैं, एक नए फाइल को यहाँ पे ढूंढ के ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें हो गया हमारा फाइल टैब में। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट विंडो। दिस इज द एरिया, document window. This is the area where text is typed or edited. The vertical blinking lines indicates where the typed text will appear in the documents windows and known as the cursor. Okay. The document view, the document window is the blank space. Okay. Where text is typed or edited. For example, I am typing my name here. So you can clearly see that these we are able to type anything on this on the given space. That's why it is called as document window. We can type or edit text here. Okay, we can type or text edit here. Type or edit text here. Then a vertical blinking line indicates where the type text will appear. यहाँ पे देखो एक वर्टिकल लाइन है जो कि ब्लिंक कर रहा है, यानी देखो एक आर विजिबल हो रहा है फिर इनविजिबल हो रहा है, ठीक है, बार बार। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे कर्सर बोला जाता है, ठीक है। उस ये दिखाता है कि हम अभी जो टाइप करने वाले हैं वो यहाँ से ही शुरू होगा। नेक्स्ट, स्टेटस बार। व्हाट इज स्टेटस बार? It is located on the lower left side of the application window. It displays information such as the word count, the number of pages, and small icon showing is there any grammatical error in the text. यहाँ पे देखो, नीचे देख सकते हो यहाँ पे तुम सब, यहाँ पे देखो पेज दिखाई दे रहा है, कितने वर्ड्स टाइप किया गया है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम बाद में जानेंगे। नेक्स्ट वन इज द व्यू बार. It is located at the lower right side of the application windows. It allows user to view the document in different modes such as web layout, print layout and read mode. तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो प्रिंट लेआउट ये है, दिस वन इज द फुल स्क्रीन रीडिंग मोड। ओके, और यहाँ पे वेब लेआउट, ये सारे यानी हम किस तरह से डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं इसमें यूज करके हम देख सकते हैं, ठीक है। और जनरली ये हमेशा प्रिंट लेआउट में रहता है। नेक्स्ट, जूम टूल्स लोकेटेड टू द राइट ऑफ द व्यू बार, यहाँ पे है, ठीक है। इसे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो पेज जूम होगा यानी बड़ा हो जाएगा, अगर हम उसे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे हम ड्रैगिंग ड्रॉपिंग करते थे, यानी लेफ्ट माउस बटन को इसके ऊपर क्लिक करते हुए मैं अगर राइट को खींचूंगा तो वो जूम हो जाएगा, अगर लेफ्ट को खींचूंगा वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्क्रॉल बार. The vertical scroll bar is located along the right side of the screen. It helps us scroll up and down throughout the text. If the text is too zoomed in for the screen to show complete document, a horizontal scroll bar appears just above the status bar.
which can be used to navigate left or right. For example, यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार है, अगर डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाता है तो देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है जिससे मैं स्क्रॉल करके लेफ्ट या राइट साइड को पेज को मूव कर सकता हूँ। अगर पेज का साइज छोटा होगा तो देखो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। और हम जो स्क्रॉल बार जान रहे हैं तो ये भी एक स्क्रॉल बार है जिसपे हम स्क्रॉल करके वर्टिकली मूव कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को। और अगर पेज बड़ा हो गया तो और एक स्क्रॉल बार क्रिएट हो जाता है जो कि हॉरिजॉन्टली इसे कंट्रोल करता है, यानी लेफ्ट या फिर राइट को। ठीक है। बच्चों अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज जाएंगे, पेज नंबर 54, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो कैसे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। आफ्टर स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, द एप्लीकेशन विंडोज ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। टू ओपन अनदर न्यू डॉक्यूमेंट व्हाइल एप्लीकेशन विंडो इज ओपन, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन, डबल क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इजी है, मैं अभी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फोल्डर, ये सॉरी एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट ओपन होके ही रहा है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, और एक नया फाइल ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है। फिर हमें ओपन के ऊपर, सॉरी न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल 2 बार क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे और ब्लैंक फाइल क्रिएट हो गए, और जो प्रीवियस फाइल था वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पे। ठीक है। ये नया वाला है। कैसे, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करो, न्यू के ऊपर क्लिक करो, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर 2 बार क्लिक कर दो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नया फाइल क्रिएट हो गया। अभी सेविंग्स अ डॉक्यूमेंट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैसे हम सेव करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया था। ठीक है। मैं कुछ और टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया। ठीक है। इसे सेव कैसे करें, क्योंकि टाइप तो हो गया, अभी तो सेव नहीं हुआ है, उसे सेव कैसे करें। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं सेव करने के लिए। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो, फाइल टैब के ऊपर, यहाँ पे देखो सेव। ठीक है। सेव एज के ऊपर हमें क्लिक करके वर्ड डॉक्यूमेंट में जाना है, क्योंकि हमें वर्ड डॉक्यूमेंट पे सेव करना है। ठीक है। क्लिक करो, फिर डेस्टिनेशन ढूंढो कि कौन से जगह पे हमें इसे रखना है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर रखूंगा, तो ये फाइल का नाम है सदानंद। ठीक है। या फिर मैं कर देता हूँ इसे क्लास 3 कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे मैं सेव अगर कर देता हूँ इसे, तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप के ऊपर देखो क्लास 3 कंप्यूटर के नाम पे एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो देखो एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट वो है। और एक उपाय है, ऑल्टरनेटिवली पेज नंबर 55 देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो alternatively, to save a file, click on the save button in the quick access toolbar, then select the location and type a file name in the save as dialog box. तो यहाँ पे देखो ये फाइल है, इसके ऊपर वो बोल रहा है कि अगर इस ये सेव नहीं है तो इसे सेव करना है। ठीक है। तो इसका नाम देना है standard 3 कंप्यूटर, देन डेस्टिनेशन ढूंढ के कौन कहाँ पे रखना है उसे उस जगह पे जाके इसे सेव कर देना है। देखो हम अभी डेस्कटॉप में देखेंगे, जैसे प्रीवियस वे में हमने एक सेव किया था, ये एक तरीके से मैंने सेव किया है, ये दूसरे तरीके से सेव किया है। तो देयर आर 2 ways टू सेव अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। ओके। तो बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।